الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی سر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں بھائی، سب لوگ ایک بار سلام کرو تو مجھے پتہ لگتا ہے سب کو سنے آ رہی کہ نہیں آواز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، آ رہی سر آواز۔ تو آج ہم ایک نیا سبق شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ، تھوڑا سا ایک نیا، اس میں ذرا سا اضافہ کر رہے ہیں۔ تو یہ آیتوں کا جو ترجمہ کرنے کی طرف ہم پیش رفت کر رہے ہیں، روز تھوڑا 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 اضافہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو ذرا غور فرمائیے، ہم دیکھیں تھے ابھی تک کا مؤنث اسم کو پہچاننے کے لیے گول تا لگایا، ٹھیک ہے؟ سب مانتے ہیں اس بات کو؟ فیمینین اسم بنانا ہے، بولو۔ تو آخر میں کیا لگایا جاتا ہے؟ گول تا، جسے ہم کہتے ہیں تاء مربوطہ۔ سب لوگوں کو سنے آ رہا ہے؟ سب سنے آ رہا ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ کر رہے ہیں۔ واحد اگر لکھیں، اگر مؤنث اسم واحد یعنی سنگولر یعنی واحد، سنگل، ایک، تو یہ کیا ہے ذرا پڑھیے۔ الصلاۃ ہے، کیا ہے؟ اگر اعراب لگائیں گے تو الصلاۃ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر اگر ہمیں جمع بنانا، کیا بنانا ہے؟ تو یہ تا گول تا کھل جائے گی، اس سے پہلے الف آئے گا اور تا آئے گا، کیا آئے گا؟ تو الصلاۃ کے جمع ہو جائے گا الصلوات، سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ سانچہ ذرا دھیان میں رکھیے، الصلاۃ اور الصلوات۔ سب کو سمجھ میں آیا تو ہاں بولیے، کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھیے۔ جی سمجھ میں آ گیا سر۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو اب ذرا یہاں سے ہم پڑھیں گے، کوئی ایک بازی زور سے پڑھیں گے، ایک لائن پڑھیں گے، خالی ایک بچی ایک لائن پڑھیں گے۔ پڑھیے بیٹے۔ پڑھو، بولے کہ پھٹ بول کے پڑھنا، وقت برباد نہیں کرنا۔ الآیت العلامت ایک سیکنڈ پہلے پڑھو، الآیا چاہیے، الآیت، اور یہ کیا ہوگا؟ الآیات۔ الآیات ہاں پڑھیے۔ الآیات العلامت العلامات خالی روٹی ملتی تھی کیا؟ بھائی آپ سے گزارش ہے میرے لیے، مائک چالو رکھتے ہیں، بک مت کرتے ہیں۔ ہاں، الجنت، الجنات شاباش، ہاں۔ چلو دوسرے کوئی پڑھو جلدی جلدی۔ الصلاۃ صلوات یہ لائن پڑھو، البرکۃ یہ لائن پڑھو۔ الامانۃ الامانۃ پھر سے پڑھو۔ الامانۃ امانت، امانت، الف ہے نا ایکسٹرا یہاں پہ۔ الامانۃ ہاں، الامانۃ الامانۃ پھر سے پڑھو۔ نہیں، گڑبڑ نہیں کرنا، گڑبڑ نہیں کرنا۔ دیکھو، ال ہو گیا، حمزہ سے امانات، امانۃ دیکھ رہے، ذرا غور کیجیے یہاں پہ، کوئی بات نہیں، ذرا سا غور کیجیے۔ الصلاۃ رک جا۔ یہاں پہ دو چیز نوٹس کرنی ہے آپ کو اچھی طرح سے۔ ایک یہاں پہ الف دکھ رہا ہے، یہاں پہ بھی الف دکھ رہا، دونوں کی آواز آنا چاہیے۔ یہاں پہ بھی الف دکھ رہا، ہاں، الامانات، الامانات، ہاں ایسا پڑھو۔ الامانات الصلاۃ الصلوات ہاں، البرکۃ البرکات شاباش، ہاں۔ چلو ابھی کوئی اور پڑھو بھائی، جلدی سے۔ الکلمۃ الکلمات الحسرۃ الحسرات السماء السماوات۔ شاباش، ہاں چلو نیکسٹ کون پڑھنا چاہتے ہیں؟ الحسنات ہاں پڑھیے۔ الحسن یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو نہیں آتا پڑھنا؟
الحسنۃ ہاں الحسنۃ الحسنات شاباش. ہاں السیئات السیئات السیئات. اچھا پڑھو السیئات السیئات. السیئات ہاں الظلمات الظلمات شاباش. نیکسٹ کوئی پڑھیں گے؟ پڑھیے یہ. الصالحات الصالحات چلو میری ایک بات البینات سنیے. باجی ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھو، آپ خاص کر کے جو پڑھ رہے ہو، اگر کوئی پڑھ رہے تو اس کو ہٹا کے مت پڑھتے جاؤ، یہ اخلاق نہیں ہے. کوئی پڑھ رہے نا اس کو ڈھکل کے پڑھنا نہیں. ہم عربی پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اخلاق تہذیب بہت ضروری ہے. ہاں پڑھیے، آپ پڑھیے، آپ خود پڑھیے. پڑھیے. الصالحات 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 البینات البینات الطیبات پھر سے پڑھیے. اس کو پھر سے البینات بھائی البینات 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 الطیبات الطیبات پھر غلط پڑھے. الطیبۃ. الطیبات الطیبات. چلو نیکسٹ. چلیے پڑھیے، جلدی پڑھیے. کون پڑھنا چاہ رہے تھے؟ پڑھیے. سب کو ٹرانسلیٹ الدرجة الدرجة الدرجات الصدقة الصدقات الشهوة الشهوات. بچے ارے بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ عائشة صدیقہ. بہت اچھا پڑھتی بیٹے، تیرے بہت اچھے تلفظ ہے، ماشاء اللہ. اللہ تیرے علم میں اضافہ. چلے نیکسٹ کون پڑھ رہے ہیں؟ جی سر ہم لینا. ہاں ضرور پڑھو بیٹے، ضرور پڑھو. الخیر الخیرات الثمرة الثمرات الشهادة الشهادات. ہم بولیے آپ کا. زبیہ ماہی. بہت اچھا پڑھے ابھی، ماشاء اللہ بہترین پڑھو. نیکسٹ. چلو جلدی الرسالة کرو. ہاں الرسالات الخطيئة الخطيات الوالدة الوالدات. نیکسٹ. بہت سارے لوگ ہیں آن لائن، پڑھیے، سب پڑھیے. مرد حضرات پڑھیے کوئی ابھی. کوئی بھائی ہے کیا؟ کوئی ہے کیا؟ مرد لوگ ہیں؟ اچھا بھائی کوئی بھی پڑھو. چلو میں جاؤں کیا؟ گھر کو جاؤں کیا میں؟ میں ہاں پڑھوں. الخالات المسلمات المسلمات کیا سے پڑھے بیٹے؟ نہیں سنے نہیں آیا. الخالات الخالات المسلمات المسلمات المشركات المشركات المشرکات. المهاج ہاں بس بس بس. ہاں المشركات ہو گیا آپ کا ختم. نیکسٹ پہ پڑھو. چلو جلدی. المهاجرة المهاجرات المنافقة المنافقات الخبيثة الخبيثات. ماشاء اللہ. تو سب کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ مؤنث کی جمع کیسی بنائی جاتی. مؤنث کی جمع بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو یہ بولتا ہٹائے، اور بولتا ہٹانے کے بعد میں جو بھی آئیں گا اس کے بعد میں آخر میں ختم ہوں گا الف تے سے ختم ہوں گا. یہ مؤنث جمع کی پہچان ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا آپ میں سے اس کو پڑھنے والے اور جتنے معنی آ سکتے اتنے بولیے. چلیے کون پہلے پڑھے گا؟ معنوں کے ساتھ پڑھیں گے. معنی نہیں آنے سے آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں. دوسروں کے بولنے سے ہم معنی سیکھیں گے. میں بھی سیکھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. ہاں چلو بولو بیٹا. چلو چلو جلدی کرو. ہاں بولنا. بولو، بالکل بولنے کا ڈرنا نہیں. الآية الآيات
आयत यानी निशानी, आयत यानी निशानियाँ, निशानियां। हाँ निशानियाँ। अल हाँ अलामत, अलामत, अलामत भी निशानी है और अलामत उसकी जमा। जी जी। अलामत अल का जन्न, मतलब है इंडिकेटर या सिग्नल। ये हाँ चाहिए ना। अल जन्नतु, अल जन्नत, जन्नत, जन्नत और जन्नत की जमा जन्नत। अल अमानत, माशाल्लाह। अमानत, थोड़ा थोड़ा अमानत, जितने पढ़ सकते हो। अल अमानतु, अल अमानत, अमानत और अमानत की जमा अमानत। जो जी दूसरों की रखी हुई चीजें अपने को माशाल्लाह। संभालना रहता है उसको अमान। बहुत अच्छे बहुत। अस्सलातु, अस्सलातु, अस्सलवात, सलात यानी नमाज और अस्सलवात उसकी जमा। अल चलो, बरकतु, अल बरकात, बरकत किसको बोलेंगे सर? बरकत यानी कोई चीज में आपकी उम्मीद से ज्यादा इजाफे में मिलना आपको। जैसा आपने रोजी रोटी के मुताबिक सोचे कि आप 3,000 रुपए की कमाई चाह रहे हैं, आपको 4,000 मिल रहे, बरकत है। काम में क्या है? अल्लाह का फजल है। ठीक है, बरकत समझे सबको। बढ़कर कोई चीज आपकी तवक्को से ज्यादा मिलना, उसको क्या बोलते हैं? बरकत बोलते हैं। माशाअल्लाह। हाँ पढ़ो बेटा नेक्स्ट। अल अल कलिमतु, अल कलिमात, कलिमा यानी हाँ बात, हाँ। और उसकी जमा कलिमात। अल एक हसरत, लफ्ज जो है बा माने, बोलो। एक अल बा माने कलिमतु, लफ्ज को क्या बोलते हैं? कलीमा कहते हैं, हम बोलते हैं ना। एक और ये जो है लफ्जों की जमा, कलीमा। बा माने लफ्जों की जमा। जमा। अल अल हसरतु, अल हसरात, हसरत यानी किसी चीज का ना मिलना, मतलब मायूसी। जी जी। हसरत यानी कोई चीज पे जो अपने पास नहीं है उसके मुतालिक सोचना कि जो चीज अपने से दूर है। हाँ हसरात की जमा है। माशा। अस्समा, अस्समावात, समा यानी आसमान और समावात आसमान की जमा। अल शाबाश, आगे हसन, बढ़ो। अल हसनतु, अल हसनात, हसनत यानी अच्छा, अच्छाइयाँ। अच्छाई 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 हाँ और और हसनात, अच्छाई। कहाँ गए? पढ़ो ना। चलिए कोई और पढ़िए बेटे, यहाँ से शुरू करो। है कोई आवाज आ रही मेरी? सर मैं पढ़ूं लेकिन मीनिंग नहीं मालूम है, मैं अभी ज्वाइन किया। मीनिंग नहीं आया बेटे, मीनिंग आने का कोई भी ऐसी जरूरी नहीं है। हम सुनकर समझकर मीनिंग करेंगे। और जब इसका सबका एक साथ वीडियो लगाऊंगा, मैं लगाया था ना जैसा, वो मायनों के हाँ साथ आपको सब मिल जाएंगे। वो वीडियो में उसके मायने मिल जाएंगे आपको। ठीक है। सर सर किसी बोलना क्या को भी किसी ठीक है को सर, भी खाली कोई कहाँ से मायने पढ़ूं? नहीं आते। हाँ यहाँ से पढ़िए, जितने आते हम बताएंगे। सही आप। अल अस्सय्यअतु यानी गुनाह को बोलेंगे। हाँ आज ही उनको पढ़ने दो, फिर अपन उनको मायने बताएंगे। हाँ हाँ पढ़िए इधर, भाई साहब पढ़िए आप। अस्सय्यातु, अस्सय्यात, हाँ, अल जुलुमातु, अल जुलुमात, अल सालिहातु, अल सालिहात, अल बैनातु, अल बैनात, अल ताइबातु, अल सही ताइबात, बात। अल सही बात। सही। तय्यिबातु, एक मिनट अल रुको। तय्यिबातु, रुको फिर रुको। अतई बतू। अत-तय्यिबतु, अतई बात। अत-तय्यिबात। हाँ बाजी इनको मायने बताओ। ये तीन और तीन से गाँव के मायने बताओ। अल कलिमतु बोले तो बात है, अल्फाज लफ्ज, और अल कलिमात से बातें, अल्फाज। अल हसरतु और उसकी जमा अल हसरात, हसरत यानी किसी चीज की कमी ना मिलना, और हाँ हसरात उसकी कमी। अस्समाउ यानी जैसे आसमान, समावात हाँ हाँ आसमान की। हाँ। तो वो भाई साहब आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जो नहीं आते अल्फाज उसके मायने नीचे लिखते रहिए आपके पास। हाँ ठीक है चलिए। सर। अल हसनतु और उसकी जमा है अल हसनात, हसना यानी अच्छाई, खूबी, और वो उसकी जमा है खूबसूरती अच्छाई दोनों भी होता है। और जी। अच्छाई का मायने ज्यादा निकलते हैं, अच्छे और अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सारे अच्छे।
अच्छाइयाँ, हाँ ये पढ़िए। अस्सय्यतु अस्सय्यात, अस्सय्यतु बोले तो गुनाह है, और अस्सय्यात इसकी जमा। जी माशाअल्लाह, बेहतरीन। बुरे काम। अज़्ज़ुलमत, अज़्ज़ुलमतु अज़्ज़ुलुमात, जुलुमत यानी अंधेरा, और उसकी जमा है जुलुमात। ये खाली अंधेरा नहीं, इसका मतलब किसी के हक तलफी करना, किसी का जो हक है वो देना नहीं, या फिर कहीं पे भी जो लोग चैन सुकून से है वहां पे फसाद पैदा करना, यानी कि वो आदमी शरारती है, ये काम करता, लोगों की अमानत अदा नहीं करता, लोगों को दिया हुआ बात पूरी नहीं करता, लोगों के साथ जी गुनाहगारी करता, ये सब आते हैं। अंधेरा भी उसको अंधेरे से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। समझ में आ जी। गया? हाँ आगे का बोलना सर। बोलिए बोलिए ना, लिख रहे ना हम अपने लिए, आपसे सीख रहे हो। अस्सालिहतु, और उसकी जमा है अस्सालिहात, सालिह यानी नेक, नहीं, और नेकियां, ठीक है। नेक। हाँ, अल बैयनत, बय्यिनतु, और बैयनत, उसकी जमा है बय्यिनात। बय्यिनतु बोले तो रोशन, खुला, रोशन रोशन रोशन, बिल्कुल सही है। वाजे बोलो, वाज़ेह। क्लियर, ऑब्वियस। लेटेंट का अत्तय्यब, अपोजिट क्या है? ऑब्वियस। हाँ, जी। अत्तय्यबतु अत्तय्यबात, तय्यब यानी पाक, और तय्यबात उसकी आप जमा। बेहतरीन। अत्तहियात तुम्हें पढ़ते हैं हम, यही हो। हम्म। अद- हाँ पढ़ बैठे। अद्दरजतु अद्दरजा, दर्जा यानी जमात, क्लास, हाँ, क्लास और यानी कि दर्जा उसकी जमा। लेवल्स, लेवल्स अलग करके लेवल्स रहते हैं ना, ऊपर का लेयर, नीचे की लेयर, उसके नीचे के लिए दर्जे, स्टेजेस। हाँ, अस्सदक़तु, और उसकी जमा सदक़ात, सदक़ा और सदक़ा की जमा सदक़ात। हाँ, सदका देते हम लोग, अश- कफ्फारे के जी तौर पे देते हैं, या फिर हमारे अच्छाई के लिए देते हैं सदका। जो पैसा हम लोगों को देते हैं या अच्छाइयाँ देते हैं अपने तरफ से लोगों को, तो उसको सदका कहते हैं, और उसकी जमा सदका। हाँ, जी सर। अशहवतु अशहवात, शहवत किसको बोलेंगे? शहवत लफ्जी में। बोलेंगे। हाँ, जो जिस्म के भूख है, मर्द या औरत की जिस्म की भूख है, हाँ उसको शहवत को, राइट। और रिसालतु और रिसालात, रिसाला अखबार को बोलेंगे क्या सर? ये रह गया ना बेटा। खैरु अल खैरात, खैर यानी भलाई, और खैरात यानी उसकी जमा भलाइयाँ। हाँ, शाबाश। अस्समरतु अस्समरात, समर यानी फल, और वो उसकी फल, जमा समरात। शाबाश। फ्रूट, फ्रूट्स। हाँ, हाँ। अशहादतु अशहादात, शहादत यानी- विटनेस, विटनेस, जब आंखों से देखकर हम किसी चीज की गवाही देते हैं उसको बोलते हैं शहादत, ठीक है। हाँ, जी। विटनेस, देखी हुई अर्रिस बात। हाँ, अर्रिसालतु अर्रिसालात, अखबार और अखबारात। नहीं, मैगजीन, मैगजीन, रिसाले दो तीन चीजों को बोलते हैं, मैगजीन को भी बोलते हैं, खत खतूत को भी बोलते हैं। खत जो है लेटर्स, ठीक है बेटा, जो हम खत भेजते थे ना पुराने जमाने में। हाँ, अल खतियतु अल खतियात, खती खता को बोलेंगे कैसे? खतियत जी 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 जी। खता यानी गलती, गलती, अनजाने में हाँ होने वाली गलती। गलती, अनजाने में जो गलती होती है उसको खता बोलते हैं, समझे ना। जी। अननोइंगली कुछ गलती हो जाती तो खता है, वो छोटी सी गलती को खता बोलते हैं। अल वालिदतु अल वालिदात, वालिद यानी फादर। फादर, अब ये वालिदत्तु बता रहे तो क्या है ये? वालदैन की जमा, ये है वालदैन बता रहे, समझे ना। ये ता से पेरेंट। इसलिए आ रहा कि ये ब्रोकन प्लूरल। हाँ चलिए, अल वालिदा यानी वालदैन, ये माँ बाप को वालिदा, ठीक है। जी। चलिए, पढ़िए। अल खालतु अल खालात, खाला और खाला की जमा। सर अल अल, वालिदतु के मायने तो वालिदा होंगे ना। हाँ, जी। अल अब ये जो है मुस्लिमतु। ना बेटे, मेरी बात सुनो, जैसा इंग्लिश के अंदर मैन की जमा क्या होती है? मैन, टूट गया ना वो। हाँ, माई, माउस की जमा क्या होती है? माइस, ठीक है। चाइल्ड की जमा क्या होती है? चिल्ड्रन। तो ये टूटा हुआ प्लूरल है, उसको उसको फेमिनिन फॉर्म में लिखते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। पढ़िए आगे। अल खालतु अल खालात। हाँ,
اور جمع المسلمۃ المسلمات، مسلم عورت ہے یہ اور اس کی مسلمان عورتیں، المشرکۃ المشرکات، مشرک مشرک کے معنی معلوم ہے سب کو؟ شرک اللہ کو کرنے نہیں والا، ماننا. اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ کمپینین بنانے والا، اللہ کے ساتھ اور چیزوں کی بھی جو مانگ کرنے والا، اللہ کے ساتھ میں دوسرے کو بھی ملا لینے والا، ٹھیک ہے، شرک ہے وہ. شرک یعنی کہ اللہ کو واحد ایک ماننے والے کو بولتے ہیں مسلمان، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی ماننے والے کو بولتے ہیں مشرک. شرک کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ہاں آگے پڑھیے. المہاجرۃ المہاجرات، ہجرت کرنے والی عورت، اور مہاجرات اس کی جمع. ہجرت کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ اپنے آپ کو لوکیٹ کرنا اسلامی قوانین کے لیے، ٹھیک ہے. ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ سے اپنے آپ کو، جیسا آپ اگر بمبئی میں رہ رہے تو پونا چلے گئے. ہاں المنافقۃ، اور اس کی جمع ہے المنافقات، منافق عورت اور منافق عورتیں، اس کے معنی جس کے دل میں نفاق ہو. کیا بولیں گے اس نہیں، کو؟ سمپل بات بتاتا میں. منافق کا مطلب ہے یہ سمجھو دیوار. کیا ہے؟ دیوار. اور دیوار پہ ایک بلی بیٹھی ہے. یہاں پہ دودھ دکھا تو یہاں اتر جاتی، یہاں پہ دودھ دکھا تو یہاں اتر جاتی. مسلمانوں کا غلبہ دکھا تو مسلمانوں میں آ جاتے، نان مسلم کرا تو ان کے ساتھ مل جاتا. اس کو منافق کہتے ہیں. منافق یعنی بغیر پینڈے کی ہنڈی. سمجھ میں آیا؟ یہ ان کو سب سے خطرناک دوزخ ملیں گی، آگ ملیں گی، کیونکہ یہ سب سے خطرناک، جو سورہ بقرہ میں 4 لوگوں کا ڈسکرپشن دیا ہے پہلے 8 آیتوں میں، ان کے اوپر زیادہ فوکس ہے کہ یہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسلام لائے، اور جب اکیلے میں جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، بولے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے تو ہولے وہ. تو ایسے بہت سارے لوگ اپنے پاس، اگر کوئی نیتا ہے، ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، انہیں بولا میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تھوڑی شراب پی، تو پی لیتے. اور جب مسلمانوں کے ساتھ آئیے تو ادھر بری بات ہو. وقت کے حساب سے اس کی سب سے اچھی اگزامپل ہے گرگٹ. گرگٹ ہوتا ہے نا، رنگ بدلتا ہے، کیمیلین، جھاڑ کے مطابق رنگ بدل لیتا ہے. یہ سب سے ڈینجر لوگ ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہیں رہتے. ٹھیک ہے، یہ جماعت مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والے لوگ یہی لوگ، جیسا وہ جاوید اختر ہے، جیسا تمہارا شاہ رخ خان ہے، تو جیسا سلمان خان ہے. گنپتی آئے تو وہ بھی پوجا کر لیتے. سمجھ میں آ رہا آپ کے ساتھ؟ جن کو منافق کہتے ہیں. اچھا بھائی، اور اس میں سے کوئی معنی کسی کو بھی نہیں آ رہے تو ذرا بولیے، لکھ لیجئے، اور لکھ کر اس کو ہائی لائٹر لگائیے. جو نہیں آتے اس پہ لکھ لیجئے، کیونکہ یہ تمام الفاظ قرآن کے ہیں، ان سے وابستہ ہونا، ان سے جڑنا ضروری ہے. تو آپ کو آیتیں آگے کی آنے کے لیے بہت سہولت ہونے والی انشاءاللہ. چلیے آگے چلتے ہیں ہم لوگ. ہاں ابھی چھوٹا سا میں بتا دے تو یہ کیا ہے بھائی؟ جسم. بولو. اب جسم کا اگر اس کا پلورل دیکھے، یہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے اندر کیا کہ جیم سین میم ہے نا، 3 لیٹر ہے. جیسا انگلش میں ہم لکھتے ہیں CHILD، چائلڈ، لیکن جمع کیا ہو جاتی ہے؟ ہاں اس میں اضافہ ہو گیا، ٹوٹ گئے. اسی طرح مین کا مین ہو جاتی ہے، یہ بھی ٹوٹ گیا. ماؤس یعنی چوہا، اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ مائس. تو اس کو بولتے ہیں بروکن پلورل. بولو سب لوگ. broken plurals. ہاں، اور عربی میں بولتے ہیں جمع تکسیر. جماعت مکسر مطلب ٹوٹ جانا. ہاں ٹوٹ جانا. خالی ذرا کاٹ پہ سے جانے دو. اب ہوتا کیا ہے معلوم کہ یہ ہے جسم اور یہ ہے
अजसाम, जिस्म के क्या बन गया? अजसाम। यौम का क्या बनता? अय्याम। बदल गया, देखो इसके अंदर भी क्या है, जिसमें 3 ही वर्ड है लेकिन इसमें अलिफ आ गया, फिर अलिफ आ गया, 2 एडिशन हो गए। अच्छा, घर को क्या बोलते हैं अरबी में? बैतुल। बोलो। Baitul. जमा क्या होगा? बुयूत। Buyut. उर्दू पढ़े वालों को किताब एक है, जमा क्या? तो कुतुब। तो ये इसको ब्रोकन प्लूरल कहते हैं। मैं खाली आपको थोड़ा सा झलक दिया इसकी, राइट? अभी नहीं पढ़ना है आपने को ये, अब हमको हमारे पढ़े हुए चीजों की तरफ चलना है। हाँ, ये एक हमारा पढ़ा हुआ चीज है जो हाफिज साहब भी 2-4 दिन से बता रहे हैं आपको। इनडेफिनेट और डेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट को क्या बोलते हैं अरबी में? नकीरा। इसमें नकीरा। और जो डेफिनेट है उसको क्या बोलते हैं? मारिफा। Marifa. अब इनमें से कोई भी जो पहचानते नहीं उसको बताया मैंने ये कौन है, तो मालूम नहीं भाई, कोई तो भी एक लड़का। अगर आपकी पहचान है, उसमें से एक उठा है पहचान वाले को, ये कौन है जो खास लड़का? ये है वलदुन, ये है अल वलद। ठीक है, ये पढ़े, बहुत पढ़े अपन ने, वक्त नहीं बर्बाद करेंगे। लेकिन इसके अंदर जो हिकमत है मैंने बताया था। किताबुन का मतलब क्या है, कोई बताएगा मेरे को? है कोई एक कोई एक है कोई एक किताब. किताब। अब ये आइडिया दिया मैंने, इसका इस्तेमाल हमेशा से है के साथ करो। क्या बोलेंगे? है कोई एक कोई एक किताब। किताब। बोलते हैं नहीं, कोई एक किताब नहीं, है कोई एक किताब। बोल, फिर से बोल। है कोई एक किताब। हाँ, किताब। इससे आपको बहुत फायदा होने वाला आगे चल के। है कोई एक किताब या है एक किताब, कुछ भी बोलो, दोनों में से एक बोलना है के साथ बोलेंगे। बोलो सब लोग, क्या एक बार रिपीट करो सब लोग। किताब है का कोई मतलब एक क्या है? किताब। है कोई किताब। है ये कोई एक कोई एक। किताब. हाँ, ये है उर्दू में कोई पढ़ा ना, एक कोई किताब। कोई एक या एक, दोनों में से कुछ भी बोलिए आप। तो यहाँ पे लिखा है देखो, अल किताब यानी इसको पढ़ेंगे किताब, और किताबन को पढ़ेंगे है कोई एक किताब। इससे आगे जुमले बनाने में बड़ी आसानी होगी। तो ये जरा बात को पक्की रखो, जिद नहीं करना। है के साथ बोलेंगे। नकीरा को क्या कहेंगे? बोलो, है के साथ बोलेंगे। और वो क्या ने? है कोई एक किताब। शाबाश। यहाँ फिर से रिपीट करके लिख रहा हूं मैं, देखो। अल किताब यानी किताब, किताब. और किताबुन का मतलब क्या है? है कोई है एक कोई किताब या है किताब. एक किताब। है कोई ये आपके एक पास लिख किताब। के रखिए, लिख के रखिए, आपको इसका बहुत बड़े फायदे इंशाअल्लाह। अब जरा यहाँ देखेंगे, जुमले बनाना सीखेंगे। बोलो, अल किताब, वो पढ़ो सब लोग। है किताब। किताब. किताब, किताबुन, किताब. है कोई किताब। है कोई किताब। अल मोमिनो, एक मोमिन। बोलो मोमिन। मोमिनुन, है कोई एक मोमिन। मोमिन एक। है कोई एक मोमिन। अल काफिर, एक काफिर। खाली बोलो काफिर या एक काफिर। काफिरुन बोलो, है कोई एक काफिर। काफिरुन है एक काफिर। बाकी के लोग भी जरा रिपीट करो ना, क्या खाली गाना सुनने को है क्या? रिपीट करो। अल काफिरू काफिर. काफिरुन है कोई एक काफिर. शाबाश। अब यहाँ से आपको पढ़ना है, आपको बताना है। करीब, करीब यानी नजदीक। बोलो करीबन, है कोई एक करीब। है कोई एक करीब. हक़ुन, हक़ुन। है कोई एक हक़। है कोई एक हक़। जुल्मुन, जुल्म। है कोई एक जुल्म। है कोई एक जुल्म। शदीदुन, शदीद शदीद। का मतलब क्या है? शिद्दत। सीवियर, सीवियर यानी सख्त, सख्त, बड़ी ताकत की चीज को क्या बोलेंगे? शदीद। शदीद। शदीद मार पड़ी, बोले तो जोरदार मार पड़ी। बोलो शदीद। और शदीद। है कोई एक्सप्लेनेशन एक, क्लियर नहीं हो रहा है, दूसरे के ना माइक चालू है बोल के आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ भाई, जरा माइक बंद करो बेटे, मैं बोले जब करो। हाँ, शदीद उनका मतलब क्या है? शदीद, शिद्दत। शिद्दत का मतलब सीवियरिटी, बहुत सीवियर, बहुत ताकतवर, ताकत से किए हुए काम को नेगेटिव सेंस से बोलते हैं शदीद, राइट? हाँ, शदीद गर्मी है। कैसी गर्मी है बोलो? वो किसी चीज का लेवल के आगे चलेगा तो शदीद बोलो। सख्त। शदीद समझ गए? सख्त। सख्त।
हाँ ये बोलो बोला कौन बोलेगा कलील एनीबॉडी कोई भी हाँ कोई एक है कोई कम कम खलील छोटा से क्वांटिटी को बोलते हैं खलील किसको बोलते हैं छोटा छोटा कम मिकदार में इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी क्या बोलेंगे खलील इधर पढ़ो ये कसीर है Big कोई quantity. बड़ा ज्यादा 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 तादाद ज्यादा था समझ में आया? तादाद में ज्यादा तादाद में ज्यादा ज्यादा से ज्यादा बेटे ये बहुत कुरान में आने वाली चीज है जरा अच्छा देखो काफिरुन है कोई एक काफिर। फिर तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मर्द हजरात से आप भी पार्टिसिपेट करो औरतों से डर के आप खामोश बढ़ जाते जरा आप भी बोला करो हाँ बोलिए मर्दों में से भी पार्टिसिपेट करो मोमिनुन बोलिए बोलो एक मर्द है कोई एक मोमिन है कोई एक मोमिन क्योंकि मुसलमान को मोमिन बोलते हैं हाँ मुहाजिरुन हाँ है कोई एक महाजिर मुहाजिर हिजरत करने वाला हाँ अब देखो वासिउन बोलो वासिउन का मतलब है वसी वसी बोलते ह्यूज बोलो ह्यूज क्वांटिटी समंदर कैसा रहता है जी बहुत बड़ा पहाड़ कैसा रहता है बहुत बड़ा वसी पैमाने पे बहुत बड़े तरह तो क्या ले रहे हैं हम वोकैबुलरी वसी पैमाने पे ह्यूज क्वांटिटी पे वोकैबुलरी ले रहे हैं पूरे कुरान के वोकैबुलरी उठा के ला लिए हाँ ये बोलो कबीर है कोई एक छोटा कबीर 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 नहीं सॉरी है कोई बड़ा बड़ा हाँ खैरुन है कोई एक अच्छाई भलाई अच्छाई भलाई 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 सही है बिल्कुल भलाई लिबासुन अपन उर्दू में लिबास बोलते हैं ना है कोई अच्छा ड्रेस लिबास क्या है भाई ड्रेस पोशाक लिबास हाँ ये बोलो जीनतुन है कोई अच्छा डेकोरेशन खूबसूरत डेकोरेशन जीनत क्या है डेकोरेटेड खूबसूरत किया हुआ खुशनुमा इसके मायने क्या है खुशनुमा का मतलब अपियरिंग नाइस डेकोरेटेड आया समझ में घर को कैसा सजाते हैं आप शादी में उसको क्या बोलेंगे जीनत जीनत यानी कि खूबसूरती इज्जतदार खूबसूरती ऐसी खूबसूरती वो खूबसूरती नहीं रास्ते पे चल रहे कुछ भी पहन लेके भटक रहे नहीं वो नहीं वो आवारगी हाँ ये बोलो शैउन है कोई एक चीज फिजिकल ऑब्जेक्ट साहिरुन है कोई एक जादू मैजिक है कोई एक जादूगर अच्छा सलामुन है कोई एक सलामती सलामती है कोई एक सलाम पीस बोलते हैं ना पर पीस भी अपॉन यू हाँ रसूलुन है कोई एक है कोई एक रसूल मैसेज पहुंचाने वाला ट्रांसमिट करने वाला मैसेज को अल्लाह के मैसेज को ट्रांसमिट करने वाला पहुंचाने वाला अच्छा ये क्या है भाई उसवतु है कोई जानते हैं? है कोई एक रास्ता नहीं इनाम नेमत नेमत है इसका मतलब है रास्ता नहीं है इसका खैर मैं चेक करता हूं अदुवन बोलो अदुवतुन है कोई एक दुश्मन दुश्मन है दुश्मनी एक अदुवतुन चलो दुश्मनी ये क्या है मोहसिनुन है कोई है कोई एक दोस्त एहसान करने वाला गरीब का अच्छाई करने वाला भलाई करने वाला आपके साथ में मोहसिन को कहते हैं अच्छा दोस्त हाँ हसरतुन ख्वाहिश है कोई एक ख्वाहिश है कोई एक बड़ी ख्वाहिश जो नहीं मिला उसकी ख्वाहिश करते ना एक बड़ा घर होना एक बड़ी कार होना किसी कार सामने तो ऐसी होना ये हसरत हाँ उम्मतुन है कोई एक अम्मा कौम अम्मा है कोई एक कौम कौम उम्मत
उम्मत ठीक है, बराबर। उम्मत का मतलब बराबर, बिल्कुल सही है, गलती थी मेरी। हाँ बोलो, उम्मत का मतलब पूरी कौम। हाँ बोलो। बईदुन है कोई एक, दूर, दूर, फार अवे। दूरी, फार अवे बोल दो, डिस्टेंस, दूर, दूरी पर। दूरी, इलाहुन। एक इलाह, हाँ बोलो बेटा। एक एक मिनट, अल्लाह, एक मिनट, क्या पूछ रहे भाई साहब, पूछिए। एक इलाह, बईदुन ये का तो मतलब फार अवे। उसका मीनिंग बोलो ना। आपकी आवाज है ना, बहुत डिस्टर्बेंस है सर। दूसरे लोग बोल रहे जरा बोल के माइक समझ में नहीं आ रहा आप क्या सब सिखा रहे। ओके, माइक चालू ना। अब आ रही है मेरी आवाज अच्छी? हाँ, बईद का मतलब है दूर। करीब का उल्टा क्या होगा? बईद। करीबुन, बईदुन। ओके, आ रहा बेटे आपको आवाज आई है मेरी? हाँ, अब बोलो। इलाहुन मायने बोलो। वर्थ, बोलो वर्थ, वर्शिपिंग, किसी की इबादत के काबिल। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई भी इबादत के काबिल अल्लाह के अलावा। समझे? इलाहा समझे? किसी की माबूद को बोलते, क्या बोलते? इबादत करना। तो हम लोग तो अल्लाह की इबादत करते, लोग बहुत सारे माबूदों की इबादत। हाँ ये बोलो। इबरतुन, नसीहत, किसी चीज से सीखना। जैसा मैं हमेशा एग्जांपल देता, छोटा बच्चा लैंप के पास बार बार जा रहा, तो एक बार उसकी उंगली उसको लगा के बताओ, छुड़का लगा, तो वो इबरत है उसके लिए, अगले मर्तबा ऐसा काम नहीं करेगा। अजीम, बड़े ही अजमत वाला। राइट, अजमत का मतलब he has lot of pride, lot of respect। हाँ ये बोलो। लिसानुन, ये हो गया क्या? जमलुन, बोलो जमलुन का मतलब क्या है? ऊंट। कोई है? ऊंट, ठीक है। फिर आ गया इब्रत। ये क्या है? अजीम जो, हाँ ये देखो। लिसानुन, जुबान को बोलते हैं लिसान। क्या बोलते हैं? टंग, टंग। ये क्या है? फिजियन, डिप्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, समझे ना? दुख। हाँ, फकीर, फकीर के मायने क्या है भाई? फकीर के मायने गरीब है। मिस्कीन के मतलब हिंदुस्तानी फकीर है, समझे? फकीर का मतलब गरीब, और मिस्कीन का मतलब भिखारी। हाँ, मलिकुन का मतलब क्या है? किंग। और सेहरुन का मतलब क्या है? जादू। बशरुन का मतलब क्या है? इंसान। तो एक बार देख लीजिए, कौन से मायने नहीं पता है? हाँ बोलिए मुझे, कोई भी जो माने नहीं है, लेडीज हो या जेंट्स हो, जरा पूछ लीजिए। फिजियन सर, फिजियन का मतलब है कि हम किसी चीज को करने के बाद हासिल नहीं होता है तो हम कैसे हो जाते हैं? सैड हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उसको फिजियन बोलते हैं। ठीक है बेटे, समझे? जी राइट सर। और कोई लफ्ज है क्या? देख लो। जमाल नहीं है बेटे, जमालुन है वो। अच्छा जमालुन, जमालुन है तो खूबसूरती है। जमाल, तिखरुन, तिखरुन का मतलब सर? किसका बेटा? तिखरुन नीचे वाला लास्ट वर्ड सर, तिखरुन है फकीर ना? है बेटे, फकीर है ना बेटे, वो दिख रहा नहीं क्या? सर सबसे उसके लास्ट मतलब वाला, सबसे लास्ट वाला सर। सर अदुबुन के कोई- मीनिंग अदावत, अदावत का मतलब है दुश्मन, दुश्मनी। खिजियन के नीचे सर, खिजियन के नीचे का। एक मिनट, मैं एक एक का काम कर सकता हूँ। हो गया क्या बेटे तेरे? अदोवन का मतलब समझ है ना? अदावत, अदावत यानी बोलो फ्रेंडशिप का उल्टा क्या है? एनिमोसिटी, दुश्मनी। जी हाँ सर। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप कौन सा बोल रहे हैं? फिर फकीर उनके नीचे। उसवतुन, उसवतुन, उसवतुन। उस वक्त का मतलब है फैमिली होता है असल में। उस वक्त क्या? उनका मतलब फैमिली, फैमिली। तरीका भी होता है, फैमिली भी होता है, फैमिली। फैमिली और तरीका।
और कोई बेटे बताओ। और कोई लफ्ज है? फिदियतुन, सर फिदियतुन, बैदुन के नीचे फिदियतुन। फिदियतुन, फिदिया देते ना, वो है फिदियतुन। हदिया गिफ्ट देना। करना, गिफ्ट करना। फिदिया यानी हाँ, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिदियतुन ना। जी हाँ, फिदियतुन, बैदुन के नीचे। फिदिया देते, मानो फिदिया किसको बोलते हैं? अगर नहीं आपने मालूम। कोई गुनाह किए, वो गुनाह के लिए अगर आपको मुबदला देना है तो फिदिया देना पड़ता है, समझे? खून जी का, हाँ, जी हाँ। खून के बदल खून, आंख के बदल आंख, नहीं तो उसके बदले में उतना अमाउंट देना पड़ता अच्छा, जज़ाकल्लाह। है। हाँ, अब बोलो मुबारकन, मुबारक का मतलब क्या है? भाई कोई एक मुबारक। बरकत, बरकत हाँ, वाला, बरकत। बरकत। बरकत, बरकत यानी उसमें आपको फायदा हो, ऐसा बोलने का। अच्छा, आगे पढ़ो। गफूरुन का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा माफ करने वाला। करने वाला है। गफूरुन, माफ करने वाला। अच्छा, रहीमुन का मतलब क्या है? रहम फरमाने वाला, रहम करने वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सब सेकंड, भाई कोई एक रहम करने सेकंड, वाला। एक सबसे सेकंड। ज्यादा रहम करने वाला। हाँ, ये रहम बाजी में करने बताओ। वाला। हाँ, जरा सुनेंगे बाकी लोग, आप मुंह बंद रखो। हाँ, गफूरुन के अंदर बहुत ज्यादा माफ करने वाला कैसा समझे? कल आपने पूछे थे, कैसा समझे बेटे? मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी कभी आपको 4 हरफी लेटर मिलेगा, लफ्ज बोलो 4 हरफी, बोलो कितने हैं गफूर में? कितने लेटर है बोलो? 4 हरफी, 4 हरफी लेटर। हाँ, तो तीसरा लेटर वाव दिखेगा आपको, किसी की भी सिफत में वाव दिखेगा आपको, बोलो किसी की सिफत में तीसरा वाव। लेटर किसी क्या है? भी वाव सिफत में दिखेगा। वाव दिखेगा, तीसरा लेटर। तो हाँ, तो आप बोलेंगे बहुत, बहुत ज्यादा, बहुत, बहुत ही। ये तीनों भी आवाज बिल्कुल बाजी ने बिल्कुल सही बोले। अब उसी का और एक चीज आएंगी, हम आगे पढ़ने वाले हैं। रहीम में भी 4 लेटर है, क्या क्या पढ़िए? रही में 4 है। हाँ, असल रा, लेटर है हा, इसमें या, 3। असल में इसमें 3 है। अब मेरी बात जब मैं बोलता हूं ना, तो मुंह बंद रखना, कान खोलना, टर 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 नहीं करना। रे है, मीम है, इसके अंदर एक या ज्यादा है। क्या ज्यादा है? बहुत, बहुत ही ज्यादा, बहुत रहम करने वाला। इसका मतलब इसलिए कि 4 लेटर है, ये पीले वाले में वाव ज्यादा है और इसमें या ज्यादा है। तो ये एक सबक आने वाला है, उसमें हम पढ़ेंगे। अब यहां पर एक चीज बता रहा मैं आपको, कादिरुन, देखो क्या लिखा हुआ है। क्या है कादिरुन में? क्या है एक्स्ट्रा है? अलीफ ज्यादा है। खदीर हम पढ़ चुके हैं ना। हाँ, तो इसको बोलेंगे बहुत करने वाला है। आगे बताऊंगा मैं एक एक चीज जब भी ज्यादा आएगा। इसी तरह खबीर, वहां देखो खबीर क्या है? बहुत खबर रखने वाला। समीउन, बहुत सुनने वाला। बसीर, बहुत देखने वाला। अलीम, बहुत इल्म वाला। अमीन, बहुत अमानत वाला। जमील, बहुत खूबसूरती वाला। इसका एक सबक आ रहा है, हम लोग यानी कि पीर के रोज ये पढ़ने वाले, जब तक आप सब्र कीजिए। ठीक है बच्चों? हेलो, लॉक कर दिए? अच्छा, अब जरा एक कोई भी अपना माइक खोलिए और पढ़ के सुनाइए, या आप लोगों से पढ़िए, यहाँ के लोगों से आप पढ़िए। इधर आइए, आप कुर्सी पे बैठो, इधर नजदीक बैठो, क्योंकि कोने में नहीं बैठो। और वाह बुलंद आवाज में पढ़ो। हाँ, अब एक एक चीज अपन क्या क्या इसमें पढ़ चुके हैं। वाव से हम वाकिफ है। वाव क्या है? कंजंक्शन है। उर्दू में उससे बोलेंगे हर्फ अत्फ। पढ़ो। और अल्लाह है
देखो है क्यों पढ़ा मैंने पता बोला, देखो गफूर पढ़े, ठीक है। अल्लाह है बहुत गफूर। गफूर के मायने क्या है भाई? माफ कर। समझ में आ गया आपको? 4 लेटर वाला दिख रहा, वाव दिख रहा, ऐसा हम धीरे धीरे, अभी तो खाली अंदाजा बता रहा हूं मैं, इसका लेसन पढ़ेंगे तो और आपको बहुत मजा आएगा कि तो हर आयत ऐसी खत्म होती है। हाँ, अब ये पढ़िए, आप बोलो वाव का मतलब और अल्लाह को मतलब, और यहाँ पे उन लिख रहा है, इसके बीच में क्या डालेंगे? है डालो, पढ़ो। और अल्लाह है बहुत सुनने वाला, बेहतरीन सुनने वाला। वाह, हाँ, और अल्लाह है बहुत बड़ी क्वांटिटी, समझे ना, बहुत बड़ा, जैसे कि बोलते हैं ना ह्यूज। हाँ, आप पढ़िए। हाँ, और अल्लाह है विटनेस। विटनेस का मतलब कोई चीज देखकर हम विटनेस देते हैं ना, उसका बोलते हैं मैं शहादत देता हूं। यही तो हम बोल कलमा की उंगली पर उठाते हैं ना, शहादत देता हूं, राइट, इस बात की गवाही देता हूं, आई बेयर विटनेस दैट अल्लाह इज वन। आ गया समझ में? हाँ, अब देखो बढ़ते जा रही है। हाँ, अल्लाह गनी मतलब क्या है? और अल्लाह और है अल्लाह गनी यानी कि हर चीजों से परिपूर्ण, कंप्लीट, समझे ना। गनी हम बोलते हैं पैसे वाले को, इंसान को, और अल्लाह है हर चीज से फुलफिल्ड। हाँ, अल्लाह शकूर बहुत शुक्र करने वाला, समझे? हाँ, अल्लाह अजीज अल्लाह है बहुत जबरदस्त, गालिब, डोमिनेंट। ये तमाम अल्लाह की सिफतें हैं, याद करना ये तो हर आयत में, हर दुआ में हम ये बोलते हैं। हाँ, ये पढ़ो। अल्लाह कदीर हाँ, खदीर का मतलब कुदरत रखने वाला, समझे ना, हर चीज का एस्टिमेट करके हर चीज पे खादिर है, समझे ना। अल्लाह मुहीत मोहित, मोहित का मतलब क्या है हाफिज साहब? मोहताज यानी के कोई भी चीज का प्रोवाइडर। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, उर्दू में पढ़ना आता तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए क्या है, जोर से पढ़िए। उर्दू नहीं आता कोई मुश्किल नहीं, चलो पढ़ो। वाव वाले दो बच्चे, और अल्लाह है गफूर रहीम, बहुत गफूर बहुत रहीम। वाव नहीं लगाने का इसमें, ये दोनों भी क्या है? क्वालिटीज है, बोलो। और अल्लाह है बहुत माफ करने वाला, बहुत रहम करने वाला, इसके अंदर वाव नहीं लगाएंगे। हाँ, कैसे पढ़ेंगे? और अल्लाह है माफ करने वाला, रहम करने वाला। और ये पढ़िए, अल्लाह समीउन अलीम हाँ, अल्लाह है बहुत सुनने वाला, बहुत इल्म रखने वाला। अल्लाह गफूर अलीम हाँ, अल्लाह है बहुत माफ करने वाला और हलीम उर्दू देखते हो। और ये पढ़ो, अल्लाह वासिउन अलीम वासिब बड़ा, और हलीम इल्म रखने वाला। अल्लाह गनीयुन अलीम हाँ, गनी अभी देखे हमने, हर चीज से कंप्लीट। हाँ, अल्लाह अजीजुन हकीम जबरदस्त और हिकमत वाला, जबरदस्त हिकमत वाला। अल्लाह है जबरदस्त गालिब हिकमत वाला। हाँ, अल्लाह शकूरुन हलीम हाँ, अल्लाह है बहुत शुक्र कबूल करने वाला और हलीम। अल्लाह अलीमुन हकीम ठीक है, आ रहा है अपने को? ये नया सबक है, हमने जो पढ़े अभी तक का उसको एक एक चीज आगे जा रही है, अल्लाह गफूर रहीम पढ़ते जाइए। अल्लाह गफूरुन हलीम हाँ, अल्लाह गनीयुन हलीम अल्लाह शकूरुन हलीम अल्लाह गनीयुन हमीद ये हम अभी पढ़ के आए। क्या क्या बोलो? खरीबुन है, खरीब है, हाँ है, शदीद है, खलील छोड़ा है, काफिर है, मोमिन है, वसी है, बड़ा है, लिबास। ठीक है, ये पढ़ के अब हल्लू से इसको ऐड करते चलेंगे। अच्छा, अब ये नए एक सबक आ रहा है जिसके अंदर प्लूरल का फिर इस्तेमाल हो रहा है। बोलो, अस्समावात किसको बोलेंगे? हाथ दिख रहा है यहाँ पे, तो मोनस में जमा,
आसमान, नंबर ऑफ स्काइज, और वल अर्द, और जमीन। अल आ गया, हाँ जमीन, बोलो आसमाना और जमीन, स्काइज एंड राइट अर्थ। हाँ नूर यानी रोशनी, किताब यानी हिकमत, समझे ना? हाँ शरीयत को बोलते किताब। ये पढ़ो। हाँ हुदन का मतलब हिदायत, गाइडेंस, और नूर का मतलब रोशनी। शिफा का मतलब ट्रीटमेंट, कोई इलाज करा तो तब तुम शिफा मिलती, शिफात देने वाला। हाँ रहमत, तो हिदायत और रहमत। माँ बोलो माँ की इज्जत तो। हाँ, फिर मगफिरत और रिस्क यानी खाना। हाँ हाँ अजमीयुन यानी कोई है, बोलो एक नॉन अरब, और अरबियन है कोई अरब। अजमी बोलो तो नॉन अरब। हाँ मगफिरत यानी के माफी, रहमत, ठीक है। हाँ अजरन, अजरन का मतलब हाँ अजर देना, रिवार्ड देना। हाँ पढ़िए। हाँ अजबन का मतलब अजाब, कोई एक अजाब। ये क्या है? खौफुन, तमान। तमान एक खौफ का मतलब डर, और तमान का मतलब एक लालच। हाँ ईमान तो मालूम है। हाँ सिद्दखन और अदलन, सिद्दख और अदलन ने जस्टिस। तुगयान का मतलब तूफान, और कुफ्र है ना कुफ्र। हाँ रोशनी और हिदायत। हाँ हाँ एहसान, हाँ और तौफीकन, हिदायत। हाँ खेल और तमाशा। हाँ एक मजाक, खेल तमाशा, हुजुवन डिप्रेशन। चलो माइक खोलो, आप सब पढ़ने लगेंगे। हाँ अभी आप में से कोई पढ़ के बताइए भाई। सर चलो इधर तुगयान से का मीनिंग क्या बोले सर आप? क्या बताए? तोजिया नहीं सुने, नहीं आया, आप जरा अच्छा बोलिए। तुगयान का मीनिंग क्या बोले सर? तूफान, जब क्या बोलते हैं, फ्लड, फ्लड बोलते हैं ना पुरुष, उसको तुगयानी बोलते। पानी जमीन नदी में बारिश में जो भरता ना, भर के, उसको बाढ़ तुगयानी आना बोलते। सर, बाढ़ आना। हाँ चलिए भाई, अभी पहले मैंने क्या बताया, ये तो पढ़े हुए है ना। अब यहाँ से आप बताइए मुझे, ये डबल डबल है, वो बाजी जो मायने बोलते हैं, बाजी आप पढ़िए। है क्या कोई पढ़ने वाले? जी सर। वल्लाहु गफूरुन, वाव और अल्लाह है गफूर। वल्लाहु शहीदुन, और अल्लाह है विटनेस, गवाह देने वाला। वल्लाहु अजीजुन, और अल्लाह है बहुत अजीज। वल्लाहु जबरदस्त, बोलो। अलीमुन, अजीज का मतलब और क्या है? जबरदस्त, गालिब। जबरदस्त, और अल्लाह है जबरदस्त। वल्लाहु अलीमुन, और अल्लाह है जानने वाला, बहुत ज्यादा जानने वाला। वल्लाहु समीउ, और अल्लाह है बहुत ज्यादा हाँ सुनने एक मिनट, वाला। कुछ बोल रहे, कोई रुक बेटा, कुछ तो पूछ रहे कुछ। हाँ बोलो बेटा। अजीज का मतलब करीबी भी होता है। वो उर्दू है अपनी, फारसी है वो। जी वो फारसी है। अजीज का मतलब अरबी में होता है जबरदस्त, गालिब, जबरदस्त। ओवर डोमिनेटिंग, कंप्लीट डोमिनेशन। गालिब गालिब का गालिब मतलब गलबा पाने वाला। गालिब। Like somebody has won a territory and the complete territory is in his control. तो उर्दू में अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो अत्तर कंट्रोल, अजीज। शाबाश, शुक्रिया, पूछते रहिए। हाँ चलो आगे चलो। वल्लाहु गनियुन,
اور اللہ ہے کمپلیٹ. جی واللہ قدیر اور اللہ ہے قدرت والا قادر قادر. قدرت والا واللہ قادر. واسع. جی ہاں واللہ واسع اور اللہ ہے وسیع. واللہ شکور اور اللہ ہے شکر کرنے والا. ہاں شکر قبول کرنا ہے. واللہ ہاں محیط شکر. ہاں واللہ ہاں محیط محیط علم کو معلوم آ گیا ابھی یاد آیا. احاطہ کرنے والا کیا بولتے ہیں محیط کا مطلب احاطہ کرنے والا. کسی کو گھیرنا ہے نا پوری طرح سے گھیر لینے کو محیط رائٹ. ہاں اس کو گھیرا ڈال کے. سر وہ شکر ان کا نہیں سمجھ میں آیا. ہاں شکور کہنے کے بہت زیادہ شکر شکر والا. قبول کرنے والا. اب اس کو اپنے کو آیت کے حساب سے لینا پڑے گا. آپ والا بھی بولے تو چلے گا لیکن والا نہیں ہے. شاکرن بول تو شکر کرنے والا. شکرن یعنی شکر کرنے والا. ہاں چلیے. شکر بعض قبول اوقات کرنے والا. یہ پڑھنا ہے کیا سر؟ یہ اردو میں ہے سو. پڑھو بیٹا. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد دو صفات مثلا غفور اور رحیم بغیر واو کے اکٹھا آتی ہے. اس صورت میں ان دونوں صفات کا ترجمہ اکٹھا کیا جائے گا. اس کے اندر اور نہیں لگائیں گے. سمجھے؟ جیسا کہ درج ذیل میں پہلی مثال میں کیا گیا ہے. جی پڑھیے. پڑھوں کیا سر؟ جملوں اور آیات کا ترجمہ خود کریں. کریے بولیے بیٹے بولیے. واللہ غفور حلیم رحیم. اور اللہ معاف اور رحم کرنے والا ہے. واللہ غفور حلیم اور نہیں آتا اللہ ہے مجھے. معاف کرنے والا اور حلیم. ہاں واللہ غنی حلیم اور نہیں اور آتا اللہ مجھے. ہے ہاں نہیں غنی آتا اور لکھ دیا حلیم. ہے اس میں. ہاں تو سمجھ میں آ رہا سب کے. اور ڈالے تو بھی کوئی بڑا گناہ نہیں ہے لیکن گرامیٹیکلی اگر آپ کو اسٹینڈرڈ کرنا ہے سر ٹرانسلیشن. سیکنڈ کنٹیننگ نہیں ایک بولے سیکنڈ نا. واللہ غفور. میں جب بات کر رہا ٹر نہیں کرنا. ہاں میں کیا بول رہا. اسٹینڈرڈ ورژن کیا ہے؟ بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا. اور سامنے بولیں گے اللہ ہے بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا. یہ اسٹینڈرڈ طریقہ ہے. اگر آپ نے بولے اللہ ہے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا تو کوئی گناہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی سب کو؟ جی سر. ہاں پڑھو بیٹے. واللہ شکور حلیم اور اللہ ہے بہت شکر کرنے والا اور حلیم. واللہ سمیع علیم اور اللہ ہے بہت سننے والا اور بہت علم والا. واللہ واسع علیم اور اللہ ہے بہت وسیع اور علیم علم رکھنے والا. واللہ عزیز حکیم اور اللہ ہے بہت ہی عزیز حکمت والا اور علم والا. حکمت والا اور علم والا. زبردست. زبردست حکمت والا. بالکل صحیح ہے بیٹے. چلو یہاں یہ پڑھ لو جلدی جلدی. ہو گیا. واللہ غفور جمع نور و کتاب نور اور کتاب ہودن اسکرین گیا سر. آپ کے سب کا ٹائم.